Yes, hello everyone. So today the class is of mine, that is from Dr. Mohit, and my topic is basically world literature. Okay, because I know that ma'am is taking British literature with you, or she is going to explain. She's explaining you with the British literature, right? And उनकी जो history है, background है, she will be taking, and I'm going to take your world literature part, that which is related to your another part in which you will get your poems, dramas, not exactly dramas, basically novels are there. Okay. So novels and some prose writings or some, essays or criticism work you will find in these kind of literature. So basically in the world literature, hello, everyone is there? Okay, my voice is audible to all of you. Yes, sir. Oh, okay, fine, fine. Okay, so today's topic is that is world literature. Okay, and in this world literature, what you will tell me the exact meaning of world literature. If I say that is world literature, what do you mean by world literature? Anyone? Multilingual literature. It's like of Australia, Caribbean islands. Okay, who basically coined this term world literature? That I don't know. No problem. Anyone else? Write down in your notebooks. First topic that is world literature, and this is the term which is coined by a German writer. Write down. This term is basically given by a German writer named as Johann Wolfgang. अब तो पूरा नाम याद आ गया. Johann Wolfgang. What is the full name? That is Goethe. Okay, that is Johann Wolfgang Goethe. Actually, there is some security reasons today in the Delhi, I guess, due to which internet connections are fluctuating. Just wait a second. Chaliye. Okay. So now let's start with the world literature part. So I guess some new students joined the class. So today we are going to start with this topic that is world literature. And इस world literature को हम किसी और नाम से भी जानते हैं. What is that name? Anyone? कोई बता सकता है? मैंने पहले भी समझाया, मतलब किसी को तो पता होगा. Colonial world किसे बोलते Not हैं? I think so. What do you mean by colonial world? Colonial means basically those countries which were under British rule or under Portuguese Yeah, rule. that is colonial world बोल सकते हो या फिर कुछ भी ऐसा बोल सकते हो in which the Britishers basically rule over those countries are called as that is colonial countries, okay, or you can say the colonized countries. और इसमें हम इस चीज को इसलिए बोलते हैं that it is the world literature is basically called as third world literature, okay, it is basically called as third world literature. Clear? बेसिकली वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर दो तीन टाइप्स आती हैं, दैट इज जिसको हम थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर बोलते हैं. अगर इसके अंदर देखेंगे तो colonial colonial literature भी आता है. Okay? There is a colonial literature also, and the third one part is that is commonwealth. बेसिकली ये तीनों वर्ड स्पेसिफिकली एक ही हैं, कॉमनवेल्थ लिटरेचर. देखो हमारे में there are three or four types of the literature is basically divided into three or four parts. अगर हम स्टडीज करते हैं तो हमें लिटरेचर का पता लगता है कि दैट इट इज बेसिकली अराउंड फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट दैट इज यू गाइस डू दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर. जो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज somebody is okay. So basically first literature is called as British literature, or you can say that that is basically the literature which is started from the British, or you can say that England. Okay. सेकेंड लिटरेचर कौन सा होता है? सेकेंड लिटरेचर डील करता है आपके साथ कि कौन सा, दैट इज बेसिकली अमेरिकन, दैट इज नॉन ब्रिटिश. ओके, ब्रिटिश हो गया एक, दूसरा हो गया नॉन ब्रिटिश. नॉन ब्रिटिश में कौन सा आता है कि द countries who basically have the language as English and their specific language जो उनकी पहले से ही थी, just like France, Italy, Germany, America, and your Germany and Russia. Okay, so ये आ जाता है आपके second part में. Clear? The first part is basically related to British literature. Second part is basically related to your non-British countries, in which language जो है उनकी वो that is basically aboriginal language. They use their aboriginal language. They used to write in that language because English start होने से पहले जब language English शुरू हुई ना, when basic English languages started, उससे भी पहले की languages हैं वे. French, Italian, Russian, German, Greek, Roman. Okay,
So that's why they are called as non-British countries, or you can say that non-British literature are basically created from these countries. Okay, and the third part is basically related to your this literature, that is third world literature. ओके, जिसमें हम वर्ल्ड लिटरेचर में करेंगे, जैसे ब्रिटिश तो मैम करवा रही है, वर्ल्ड में मैं आपको नॉन ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ राइटर्स करवाऊंगा, कॉमनवेल्थ लिटरेचर करवाऊंगा। ओके, सो बेसिकली क्या हो गया कि आपने फर्स्ट लिटरेचर पता कर लिया, सेकंड लिटरेचर पता कर लिया। सेकंड लिटरेचर में जैसे मैंने आपको बताया था, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, दीज आर द काइंड ऑफ कंट्रीज विच बेसिकली यू नो बेसिकली राइट देयर इन ओन लैंग्वेज। और जब स्टार्ट हुए तो भी इन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में ही स्टार्ट किया, दे बेसिकली स्टार्टेड देयर इन ओन लैंग्वेज। बट अमेरिका जैसे अमेरिकन इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश। Okay, so that's why they also made their language English as an official language, but they called it as an American English. वो इसको क्या बोलते हैं? American English बोलते हैं, ठीक है? Now the third part is Commonwealth literature. अब आपका थर्ड पार्ट आ जाता है, that is जिसको हम Commonwealth literature भी बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर भी बोलते हैं, colonial literature भी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज टेल मी। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस? हेलो, कंफ्यूजन है बताइए। इसमें। ये मेरे को ये पता था कि जो कॉमनवेल्थ लिटरेचर है वो, जैसे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज इनको बेसिकली रेफर करते हैं, वो ज्यादातर वही हैं जो जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, जैसे कनाडा हो गया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्हें बोलते हैं कॉमनवेल्थ। लिटरेचर कॉमनवेल्थ हाँ है जी, हाँ जी, उसमें वो मैं जो। अभी एक्सप्लेन कर रहा था आपको। अभी तक मैंने पूछा कि दैट अभी तक ये तीन पार्ट समझ आए सिर्फ, कि फर्स्ट इज ब्रिटिश, सेकंड इज योर अमेरिकन एंड द यूरोपियन। इन नॉन ब्रिटिश बोला है मैंने। फर्स्ट इज ब्रिटिश, सेकंड इज नॉन ब्रिटिश, दैट इज यूरोपियन और अमेरिकन। और अदर देन दैट इज जैसे ग्रीक होगी, रोमन होगी, ठीक है। जो एक्चुअली देखो, आप ग्रीक का पढ़ोगे आप, तो ग्रीक बेसिकली द कंट्री ग्रीस, और यू कैन से दैट दीज कंट्रीज हैव देयर ओन एबोरिजिनल लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज थी, रोमन लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, जर्मन लैंग्वेज थी, इटालियन लैंग्वेज थी। तो ये दे आर लाइक दे हैव देयर ओन लैंग्वेज बेसिकली, और उन्होंने लिटरेचर भी अपनी लैंग्वेज। तो ये नॉन ब्रिटिश हो गए। जैसे मैंने अमेरिका भी बताया, अमेरिका की इंग्लिश एक डिफरेंट इंग्लिश है अदर देन दैट ऑफ ब्रिटिश। अब आ जाता है थर्ड पार्ट, दैट इज वर्ल्ड लिटरेचर, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। मैंने थर्ड पे आ गया ना, थर्ड पार्ट, तो इसको थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर बोलते हैं, कॉलोनियल लिटरेचर बोलते हैं, और एक और नाम है दैट इज कॉमनवेल्थ लिटरेचर। क्लियर? So what do you mean by Commonwealth literature? Commonwealth literature is basically called as the literature of the countries, okay, the literature of the countries on which somewhere somehow the Britishers ruled over. कि ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इन कंट्रीज पे रूल ओवर किया, ठीक है, किया था। और ये कंट्रीज सारी की सारी जो कंट्रीज आपकी हैं, आती हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, वो कंट्रीज वो होती हैं जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, और प्लस दे बेसिकली गॉट देयर फ्रीडम अराउंड 20th सेंचुरी। कब मिली इनको अपनी बेसिकली फ्रीडम? 20th सेंचुरी में मिली है। बिकॉज अमेरिका को भी देखोगे, बेसिकली अमेरिका के अंदर भी अगर स्टार्टिंग में जाओगे तो ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच कॉलोनीज बननी शुरू हो गई थी, बट अमेरिका ने बहुत जल्दी, दे आर लाइक इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द कैप्चरिंग द एरियाज ऑफ द अमेरिका, अमेरिका बेसिकली फॉट एंड दे नेवर एक्सेप्टेड कि एनी अदर कंट्री और ब्रिटिश, फ्रेंच, एनी अदर कॉलोनीज एवर बीइंग मेड हियर। ओके, सो दैट्स व्हाई अमेरिका को हम कभी भी कॉमनवेल्थ में नहीं लेते। अच्छा, चलो टेल मी वन मोर थिंग। आप लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम सुना होगा, राइट? व्हाट इज एग्जैक्टली मीन दिस? क्या मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स का? सभी ने देखे कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट? तो इन दीज कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिच कंट्रीज बेसिकली टुक पार्ट? हेलो, यस, मतलब ऑस्ट्रेलिया, ओके, कनाडा। यस, Piyush, you there? My voice is clear to you, Piyush? Yes, sir. Okay. कुछ यार तुम भी जवाब दिया करो, कोई तो रिप्लाई करे, यूं तो क्लास बड़ी बोरिंग हो जाएगी सिर्फ परस परस जवाब देता रहा तो। हो जाएगी नहीं, आई इसमें। जस्ट वांट कि देखो सब कोई कंफर्टेबली मेरे साथ बात करेंगे। जिसको भी क्वेश्चन होगा वो मुझे अपनी तरफ से पूछेगा। कोई क्वेश्चन हो ना हो, मन की कोई बात हो, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, आस्क मी। ओके, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ऑनलाइन है तो हम चीजों को अच्छे से नहीं समझ सकते, या फिर ये कोई कंसेप्ट नहीं है। हम ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हैं, और फिर भी हम सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। चाहे आपका वर्ल्ड पार्ट पे कुछ हो, चाहे कोई किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे पेपर वन से रिलेटेड हो, विल टॉक हियर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द ग्रुप आल्सो। सो
गाइस बी फ्रैंक ओवर हियर। अगर यूं डरोगे कि चीजें मैं पूछूं नहीं पूछूं, दूसरे क्या सोचेंगे या कुछ और बात होगी, या मैं क्वेश्चन कर रहा हूं किसी को, एंड इफ समवन इज वेरी मच हेजिटेटेड इन रिप्लाइंग द आंसर्स, देन इट विल नॉट पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम। बी फ्रैंक, बी कंफर्टेबल, आई एम हियर। मैं ऐसा टीचर हूं जिसको कोई चीजें ज्यादा बुरी नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे, they basically offend by the students remark and the things, but I really need that everything we will take this class as a family, okay? So that's why I just want you to be comfortable and reply the answers. At least if you don't know, then say no. It's not compulsory that you should know the answer or you should reply the good answer, okay? If you don't know, then just simply say no, okay? Okay, so what are the Commonwealth Games basically? So in the Commonwealth Games, you will never find the countries like America, France, Germany, China, and these kind of other countries. Why? Because Britishers never rule over them. And if they ever be made any colonies in these countries, they never accept it. ओके उन्होंने, जैसे अमेरिका है, अमेरिका को बहुत जल्दी फ्रीडम मिल गई थी, लाइक दे बेसिकली गॉट फ्रीडम अराउंड ऑफ 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, सॉरी। ओके, सो इसीलिए बोला जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमन जो चीज है ये कॉमन, दीज आर द गेम्स बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, so that the countries on which they basically rule over play these kind of sports, and matlab it's a kind of another sport just like Asian Games, your Olympics. It's another type in which only those countries took part whichever being ruled over by the British. Clear? तो आपको ये चीज पता लग गई, that's why we called it Commonwealth Games, और यहाँ पे भी हम इसलिए उसका नाम लेते हैं, that is called as Commonwealth Literature. Clear? तो चलो अब मुझे बताओ कि व्हाट आर द कॉमनवेल्थ लिटरेचर। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, विच कंट्रीज आर बेसिकली कम अंडर कॉमनवेल्थ लिटरेचर। जैसे सभी ने बताया था, अभी पारस ने भी बताया था, देयर इज लाइक कनाडा, ओके। सो हम कैनेडियन लिटरेचर पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट आज सारा बताऊंगा कि दैट व्हाट एग्जैक्टली वर्ल्ड लिटरेचर इज, एंड व्हाट विच आर द कंट्रीज वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आर countries which are other than your Commonwealth countries, or which are European countries, and what kind of literature is being come like is going to come in your syllabus or in the exam, okay, and how you will prepare. So this is a basically that kind of a class, okay, today. So first is that is Canadian literature. तो Canadian literature से आपको क्या समझ आता है? बेसिकली लिटरेचर ऑफ कनाडा। और जब कनाडा के लिटरेचर की बात करते हैं तो कनाडा के अंदर क्या है कि कनाडा पहले एक अमेरिका का ही पार्ट था, इट वाज अ पार्ट ऑफ अमेरिका, बट कनाडा ने एक अपना फाइट ओवर इट, एंड उन्होंने फिर अपनी रिपब्लिक ऑफ कनाडा अलग कर लिया था, मींस दे बेसिकली अमेरिका से अलग हो गए थे। और कनाडा पे इवन रूल करने वाली भी कंट्रीज कौन कौन सी थी? फ्रेंच कॉलोनीज थी और दूसरी थी ब्रिटिश। क्लियर? ब्रिटिश तो बाद में आई, बट स्टार्टिंग में फ्रेंच कॉलोनीज वर देयर। तो कैनेडियन कैनेडियन लिटरेचर में बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन। व्हाट? दैट इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? चीजों को एक्सप्लोर करना। तो अगर जब ये टॉपिक पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा जब इसमें राइटर्स थे उन्होंने किन टॉपिक्स पे वर्क किया है, दैट इज एक्सप्लोरेशन, कि उन्होंने खुद चीजें ढूंढी है। देयर लाइक नेचर के बारे में लिखा है, कुछ नई नई जगह एक्सप्लोर करी तो उनके बारे में लिखा है। तो दैट काइंड ऑफ लिटरेचर इज कम्स इन योर कैनेडियन लिटरेचर, ओके। अदर देन दैट क्या होता था ना, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन कैनेडियन आर्मी वाज फाइटिंग, उस टाइम पे जब कैनेडियन आर्मी फाइट कर रही थी ड्यू टू दीज फ्रेंच कॉलोनीज और ये, तो देखो दिस इज योर आई वांट टू से दैट लाइक दिस कंट्री है जो आपकी कनाडा, तो उस कंट्री का जो एक मैप है अगर आप उसको देखेंगे तो मैप के चारों तरफ एक साइड में पानी है, जिस साइड पे यू विल फाइंड वाटर और ओशियन ओवर देयर, जिस साइड पे इंग्लैंड दिखता है। तो इंग्लैंड और जब ये कंट्रीज आमने सामने थी, मतलब व्हेन ब्रिटिशर्स वर गोइंग टू रूल ओवर देम और फ्रेंच कॉलोनीज वर बीइंग मेड ओवर देम, तो इन्होंने बहुत जल्दी उनसे फाइट करी, और काफी टाइम फाइट करने के बाद तो जो बाउंड्री वाली विलेजेस थी और जो सिटीज थी, बाउंड्री पे जो रहती हैं, हमारे जैसे इंडिया की बाउंड्रीज कौन सी हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये बाउंड्रीज पे स्टेट्स है ना। तो सिमिलरली वहां पे जो स्टेट्स थी जो बाउंड्रीज पे थी, वहां के जो लोग थे, द पीपल हु आर लिविंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ दैट कंट्री दैट इज कनाडा, वहां के लोगों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वहां के लोगों की जो लाइफ है, वहां के लोगों की जो डेली रूटीन में वॉर से लड़ने की लाइफ है, उन चीजों को शो करता है कैनेडियन। क्लियर?
कि जो उन्होंने फाइट्स की, जो उन्हें प्रॉब्लम आई ड्यूरिंग द वॉर, तो इस टर्म को हम बेसिकली बोलते हैं गैरिसन्स मेंटालिटी। ये जब हम कैनेडियन स्टार्ट करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बेसिक सी बात बता रहा हूं कि कैनेडियन लिटरेचर में वो लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट इज देयर एक्सप्लोरेशन, कि व्हाट दे एक्चुअली एक्सप्लोर एज इन कंट्री, व्हाट इज बेसिकली, जैसे वॉर फ्रंट बोलते हैं ना जिस चीज को, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज वॉर फ्रंट। ओके, तो उस वॉर फ्रंट की बात हो रही है यहाँ पे कि ड्यूरिंग दैट टाइम वॉर फ्रंट के लोग जितने भी थे, उनकी कंडीशन, उनकी लाइफ कंडीशन क्या थी, उन चीजों के बारे में राइटर्स ने लिखा है। क्लियर? और थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन करी अबाउट द यू नो सिचुएशन ऑफ द फीमेल्स, बिकॉज एट दैट टाइम जैसे आपका यहाँ पे कैनेडियन में देयर वाज अ फेमस एंड बुकर प्राइज विनर, और यू कैन से दैट देयर इज अ लेडी कॉल्ड एज मार्गरेट एडवर्ड, जिसके बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं जो जिन्होंने विमेन सिचुएशंस पे लिखा है, जिसमें से एक बहुत फेमस नॉवल है दैट इज हैंडमेड टेल्स। सुना है किसी ने? नहीं सुना? Yes, sir. Okay. Handmaid's Tale is a kind of work in which the women used as to produce the babies of the people who are from the army. Okay. तो हैंडमेड जो लेडीज होती थी, वो होती थी बेसिकली, दे यूज आर्मी पीपल यूज टू प्रेग्नेंट देम। ओके, दे यूज टू, बिकॉज दे जस्ट वांट टू इंक्रीज देयर आर्मी, सो दैट्स व्हाई ऐसी लेडीज रखी जाती थी, ऐसी फीमेल्स रखी जाती थी जो आर्मी के लोगों के लिए बेबीज प्रोड्यूस करती थी। क्लियर? तो वो टॉपिक उस पे है, तो वहां पे सिचुएशन दिखा रखी है फीमेल की। क्लियर? तो ऐसा कुछ लिटरेचर आपको कैनेडियन लिटरेचर में मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज योर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। फर्स्ट इज योर कैनेडियन, सेकंड इज योर ऑस्ट्रेलियन। ओके, सो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में कुछ बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर क्या बताया जाता है? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया से भी थोड़ा नीचे है। इफ यू गो फॉर द मैप, देन इंडिया से नीचे नीचे आके लेफ्ट राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में, अगर आप फ्रंट से मैप देखते हैं, इफ यू विल सी द मैप इन द फ्रंट, देन यू विल फाइंड आउट दैट इंडिया से थोड़ा थोड़ा नीचे आके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो देयर इज एन ऑस्ट्रेलिया। तो एक आइलैंड है बेसिकली, चारों तरफ पानी है। बट वट एग्जैक्टली कोई मुझे बता सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जो है और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी ने कभी सुना हो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया? बेसिकली नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आपका पूरा जंगल है। ओके, the North Australia, the part of the North Australia was totally a jungle area, or you can say that dense forest was there, and there are the most deadliest creatures, or you can say that deadliest animals are living there. That's why the only uh, limited area, or you can say that the half part, that is South Australia, the people used to live there. ये मेलबर्न, सिडनी, जितनी भी जगह है, ये सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया में। In the North Australia, it's totally sand, desert, and forest. And the most deadliest creatures are living there. मतलब even आपको छोटे छोटे जो worms भी होते हैं, वो भी वहां पे सबसे deadliest मिलते हैं। Even अगर आप मैप को देखेंगे, वैसे अभी मैं मैप, अगर if it's possible for me to not right now, ठीक है, चलो जब मैं ऑस्ट्रेलिया करूंगा ना तब एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज मैं बताता हूँ, जैसे ब्रिटेन, अगर आप देखते हैं, मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, you can easily visible, my hands are visible to you or not? Yes, Okay, sir. if you will see the world map, this is Canada, this is Britain, and this is Australia. Okay, if you can see clearly, this is Britain, this is Canada, and this is Australia. तो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया आने में, अगर ब्रिटेन को रूल ओवर करना है ऑस्ट्रेलिया पे, तो उसे पूरा ट्रैवल करके आना पड़ता है थ्रू द एक्सट्रीम, लाइक जो ये आपका आर्केनियन, हम जो ये बोलते हैं ना कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ओशियन पैटर्न, तो वो ब्रिटेन से स्टार्ट होता है, ब्रिटिश से स्टार्ट होता है, ब्रिटेन से, और घूम घूम के पूरा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के नीचे से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो वो इतना दूर पड़ जाता था ना कि लोग काफी काफी समय, कुछ महीने लगा देते थे वहां पहुंचने में। तो जिस वजह से प्रॉब्लम क्या आती थी, कोई भी सामान जब पहुंचता था या फिर ऑस्ट्रेलिया पे रूल ओवर करना था या आर्मीज को भेजना था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट स्टिल देयर वर सम यूरोपियन कंट्रीज, जैसे फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, ये जरूर, दीज ट्रूप्स, जो आर्मी ट्रूप्स थे इनके, ये पहुंचे वहां पे, ऑस्ट्रेलिया पे रूल ओवर किया। इवन यहाँ तक कि जो आपके ब्रिटिश पीपल थे, ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने भी यहाँ पे कौन से फोर्ट से एंट्री करी थी, और उस फोर्ट का आज भी नाम क्या है? जो पानी का ये पोर्ट होता है, व्हाट डू यू मीन दैट पोर्ट? पोर्ट इज बेसिकली व्हिच, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्ट? एनी आइडिया? आपने जगह भी सुनी होगी, उस जगह को बोलते हैं हम क्वींसलैंड। Why we call the a place in Australia called as Queensland? Because
पोर्ट जो था दैट इज कॉल्ड एज आर्थर पोर्ट, पोर्ट आर्थर बोलते हैं उसको, ओके, आर्थर ARTHUR, दैट इज पोर्ट आर्थर। इंग्लैंड के लोगों ने यहीं से एंट्री करी और उस एरिया को जब रूल ओवर करना स्टार्ट करा, जब कॉलोनीज बनानी स्टार्ट करी, तो उस जगह को भी क्वींसलैंड नाम रख दिया था और वो आज भी क्वींसलैंड के नाम से ही है। क्लियर? तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में इन्होंने रूल मतलब यहाँ रूल ओवर किया और यहाँ पे रहे, तो यहाँ के जो एबोरिजिनल लोग हैं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के जो एग्जैक्टली एबोरिजिनल लोग हैं वो दिखने में कैसे हैं, कोई बता सकता है? द पीपल फ्रॉम Australia or the Aboriginal people from Australia, what is the appearance or the face color of them? White. Okay. Anyone else? Menka. Okay. Piyush. सर कोई आइडिया नहीं है। Okay. Masuma. No idea. Okay. Fine. देखो listen. आपने इक्वेटर वाली लाइन देखी है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा है, राइट? पूरे वर्ल्ड मैप तो सबने देख रखा है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा वर्ल्ड मैप से एक्सप्लेन करने की, बट वर्ल्ड मैप पे सबने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखी है। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर देयर एंड अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज अ वर्टिकल लाइन। इज दैट क्लियर? So that horizontal line basically explains you what? What is the use of that Tropic of Cancer line? कोई बता सकता है? अभी अभी आप सभी ने एक इंडिया में फेस्टिवल मनाया। There is a festival in the North India, or you can say that is called as मकर संक्रांति. Why we celebrate this festival? देखा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके फैक्ट्स में भी ऐड नहीं है। Clear? Festival, right? Right, but this festival is basically celebrated because the movement of sun is now towards the north. Okay? अभी जैसे ठंड थी ना, तो अभी ठंड थी because yes, क्या कह रहे हैं मैम? हेलो? हाँ, बार-बार आपका वॉइस ना पता नहीं। My voice is disturbing you guys. Like voice is not audible to you. Sir, it's audible, but Okay, actually, I'm telling you now that there is some. Actually, today is a retreat program in Delhi, which is basically after the 26th January, and today they are going to, सारे झंडे वंडे और जितने भी वो सब था, उन सभी flags को और उन सबको, उतारेंगे and सब कुछ करेंगे. So that's why I guess for the security reasons there is some Wi-Fi में problem. I don't know what kind of things are happening today. चलो कोई नहीं. देखो, हम जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो पूरे वर्ल्ड मैप को जब आप देखेंगे तो दैट लाइन बेसिकली शोज यू व्हाट, जो मूवमेंट ऑफ सन है ना, जब हम जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में ठंड होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि द मूवमेंट ऑफ द सन बेसिकली हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है लाइन है, वो आपकी भोपाल में, बेसिकली इट्स इन भोपाल के आसपास कहीं से, एंड वो नीचे की तरफ जैसे वो लाइन होती है ना, तो सन बेसिकली मूव्स टुवर्ड्स द साउथ साइड। ओके, जैसे विंटर आने लगते हैं या चीजें आने लगती है, तो जैसे टाइम पीरियड घूमता है और जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर चीज आती है, तो वो मूव कर जाता है, ठीक है? और सूरज हमारी नॉर्थ साइड की बजाय ज्यादा नॉर्थ साइड की तरफ राइज करने की बजाय दूसरी तरफ से राइज करता है, जिस वजह से होता है हमारे इधर की तरफ टेम्परेचर में ठंड भी बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा साउथ इंडिया के लोग ज्यादा ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज मैक्सिमम सन इज ओवर देयर। ओके, और जब जैसे मकर संक्रांति आती है, वैसे वैसे सूरज हमारे तरफ आने लग जाता है, मतलब नॉर्थ साइड की तरफ आता है थोड़ा थोड़ा। सेंटर में तो तुम कभी भी खड़े हो जाओ, सेंटर में तो तुम्हें कभी सन, तुम्हारे सेंटर ऑफ जैसे कहीं भी खड़े हो तुम, सेंटर में तो कभी सन आएगा ही नहीं। ओके, सन की डायरेक्शन हमेशा थोड़ी या तो इधर होगी या थोड़ी इधर होगी। क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जो लाइन है ना, वो लाइन दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो लाइन आपकी क्या है ना, मूवमेंट ऑफ सन को शो करती है कि वो इस साइड है या उस साइड है, साउथ की साइड है या नॉर्थ की साइड है। तो मकर संक्रांति जो सेलिब्रेट करते हैं वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज आफ्टर दिस डेट the movement of the sun is little towards the north and due to which the people can able to grow their crops. Now it's clear? और इवन वर्ल्ड मैप में भी आप जो लाइन देखेंगे तो आपको एक लाइन का बहुत ज्यादा कमाल का फैक्ट बताता हूं कि उस लाइन से जितनी भी कंट्रीज ऊपर है वो सारी कोल्ड कंट्रीज हैं, और जितनी भी नीचे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा नहीं कह सकता बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर हम वर्ल्ड मैप को यूं जैसे दैट इज अर्थ इज सर्कुल इन द सर्कल फॉर्म,
तो वो गोल है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे जो मैंने बताया नॉर्थ साइड का जो ऑस्ट्रेलिया है वो गर्म रहता है, दैट इज टोटली, वो बहुत ज्यादा हॉट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वहां पे। और साउथ साइड की तरफ ठंड आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मतलब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो गोलाई फॉर्म में होता है वो तो, बट अगर सामने देखेंगे तो इक्वेटर की लाइन के जितने भी लोग नीचे होते हैं उनकी तरफ सन या फिर समर्स ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि कनाडा में, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में लगा लीजिए, चाहे आप रशिया में लगा लीजिए, चाहे आप चाइना में लगा लीजिए, चाहे वो थोड़ा चाइना की नहीं, थोड़ा चाइना में तो नहीं, और थोड़ा ऊपर रशिया की तरफ, आप वहां देखेंगे वहां पे गर्मियां सिर्फ एक आधे महीने की होती है। इट्स टोटली ऑफ 1 मंथ और 1.5 मंथ, 2 मंथ्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा गर्मियां नहीं होती वहां। और हमारे यहाँ पे गर्मियां ज्यादा होती है, ठंड कम होती है, क्योंकि बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द सन इज टुवर्ड्स अस मैक्सिमम टाइम्स, and towards the north side it is the like not to the maximum times, it is just like कुछ समय के लिए रहती है, नहीं तो अदरवाइज दोबारा से साउथ साइड रहती है। तो मूवमेंट ऑफ द सन इज बेसिकली काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म जो यहाँ पे आपका यूज होता है। और दूसरी बात, इस लाइन के नीचे के सारे लोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे वो आपके इंडिया के हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो कैरिबियन आइलैंड्स के हों, चाहे वो ब्राजील के हों, चाहे वो कहीं के हों, दे आर बेसिकली ब्राउन इन कलर। आपके ऑस्ट्रेलिया के भी जो एब ओरिजिनल लोग हैं, द पीपल जिनकी स्पीसीज रेस ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुई थी, वो लोग बेसिकली ब्राउन कलर के लोग हैं, दे आर नॉट व्हाइट। व्हाइट लोग सिर्फ वो हैं जो यूरोप से आए थे, द पीपल हु बेसिकली केम फ्रॉम यूरोप एंड रूल ओवर देम, एंड दे स्टार्टेड देयर मेकिंग देयर कॉलोनीज, एंड देन आफ्टर दैट दे मेक देयर बेबीज एंड देन फैमिली, एंड देन नाउ दे आर लिविंग एंड टुडे दे हैव अ व्हाइट फैमिली ओवर देयर। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां के लोग व्हाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के आज भी व्हाइट है, हम जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में से भी व्हाइट, नो। ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस थे जो यहाँ पे आके बाद में सेटल हुए, बिकॉज यहाँ पे पहले सबसे ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी जेल बोला जाता था किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किसको बोला जाता था? ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी जेल माना जाता था इंग्लैंड की। वाई? बिकॉज ये लोग क्या करते थे, अब देखो, अब इंग्लैंड में क्या होता था ना, इन इंग्लैंड बेसिकली जो लोग थोड़े अच्छे रैंक पे होते थे, या फिर द पीपल हु बेसिकली आर रिचेस्ट, रिच people in the England, and the people who have a high order rank in the country, और उनमें से कोई आदमी क्राइम कर दे, कि जैसे मान लो कोई बहुत रिच आदमी है, कोई बहुत ज्यादा मतलब रैंकिंग में बहुत अच्छा आदमी है, कोई मिनिस्टर है, कोई बहुत अच्छा जो भी इंसान जो थोड़ा रैंकिंग में या फिर पावर में स्ट्रांग हो, और उनमें से कोई इंसान कोई भी क्राइम कमिट कर ले या फिर कोई क्राइम कर दे, तो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट दे यूज टू गिव? तो उनको वहां तो कुछ कह नहीं सकते, इफ दे विल दे अगर उन लोगों को वहीं पे जेल में डाल दिया जाए इंग्लैंड में, तो बेसिकली उनके लोग जो होंगे वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट भी जाएंगे, फाइट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं वो उनके पास चांसेस होगा कि वो छूट जाएंगे जल्दी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स वहां से उन क्रिमिनल्स को उठाते थे, उनको शिप में लोड करते थे, उन्होंने सीधा इतनी दूर घुमा के पोर्ट आर्थर पे छोड़ देते। और पोर्ट आर्थर पे छोड़ने के बाद क्या करा उन्होंने, दे बेसिकली उस पोर्ट आर्थर पे छोड़ने के बाद वहां पे उनको काफी सालों तक जेल में रखते थे, जिसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, दैट इज काला पानी की सजा। बोलते हैं ना काला पानी की सजा, दैट इज कॉल्ड एज काला पानी की सजा। क्यों? क्योंकि अगर वहां से, बिकॉज द वॉल्स ऑफ द जेल आर नॉट द थिंग्स, मतलब जेल की जो वॉल्स है वो ज्यादा बड़ी भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पे जो वॉल्स है वो हमें नहीं रोक रही है भागने से, हमें जो यहाँ का पानी है, जो चारों तरफ पानी है हमारे, और वो भी इतनी दूर दूर तक कि कोई आदमी अगर स्विमिंग करके भी जाना चाहे, भागना चाहे, तो वो फिर भी कभी नहीं पहुंच सकता कहीं भी, वो उससे पहले ही मर जाएगा। क्लियर? तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो बेसिकली वो एक जैसे हमारे ये बुल के आपने देखा होगा ना, कैसे बताऊं, जस्ट अ सेकेंड, जैसे आपका एक शेप है, अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो द शेप ऐसी है, यू करके शेप है, और देन थोड़ा सा इन्वर्टेड है। जैसे आपने भैंस बफेलो के वो देखे होंगे ना, सींग, अपने बफेलो के ये सींग देखे होंगे जब, तो आपको दिख रहा होगा, तो वो यू शेप में होता है। ओके, जैसे यहाँ पे निकला होता है, यहाँ पे निकला होता है, और इट्स अ काइंड ऑफ यू। तो आप जब वो देखेंगे मैप इसका, तो आपको दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया के भी आसपास कम से कम छोटे 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 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनकी बड़ी छोटी छोटी शेप है। ऐसे ही इन जो आपके जैसे सींग होते हैं, बफेलो के सर पे जो सींग होते हैं, उनकी शेप में है।
तो जो भी इंसान अगर बाय चांस भागने की कोशिश भी करता था, तो वो बाय चांस जैसे मान लो किसी और आइलैंड पे जाके चला गया और उसे लगा कि मैं बच गया, तो वो घूम के उल्टा वापस उसी कंट्री की तरफ ही ट्रेवल करता था। उसे लगता था कि दैट वो भाग जाएगा, बट कहीं ना कहीं इस साइड से घूम के जब वो यू टर्न लेता था, मतलब जैसे अगर इस तरह से है वो यू टर्न, जस्ट अ सेकंड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। आप लोगों को दिख रहा है ये आपको शेप दिख रही है, तो यस इसी शेप में होता था। अगर कोई आदमी जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, सॉरी, देखिए ऑस्ट्रेलिया आपका यूं है। अब मान लो पोर्ट आर्थर यहाँ पे है, ठीक है, और ये जेल है। अगर मान लो यहां से कोई आदमी भागता भी है, ठीक है, और यहाँ ये सारा पानी पानी है, दिस इज ऑल वाटर, क्लियर। तो ऐसे जो ये मैं दिखा रखा है ना, ये आपको मैंने एक शेप दिखाई है, ये वाली जो ये बीच में जो ये ब्रफेलो हॉर्न्स की तरह है, ये जो शेप है, ये क्या है ना कि कोई इंसान अगर यहाँ से यूं भागता भी था, तो मान लो इस कॉर्नर पे आया और वो इस कॉर्नर से जब चलने लगा, जब वो चलता था यहाँ से, चलते 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 वो इतना गुम हो जाता था कि उल्टा आके वो इसी कॉर्नर पे पहुंच जाता था। और अगर इस कॉर्नर पे पहुंच के उसको लगता था कि दैट वो तो फ्री हो गया है, तो अब स्विम करके जा सकता है और वो गुजरता है, और वो उल्टा कहाँ पहुंच जाता था, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होता था कि इंसान वहां से भाग ही नहीं सकता। और ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसके चारों ओर, अगर वर्ल्ड मैप देखोगे, और सबकी शेप इस तरह से ही है। ओके, तो क्या होता था कि इंसान वहां भागने की कोशिश भी करता था, तो भी घूम फिर के उल्टा वहीं पहुंच जाता था, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया, विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रल जेल फॉर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो वहां के जितने क्रिमिनल्स थे, टॉप रैंकिंग के क्रिमिनल्स, उन सबको आपने यार बहुत पहले टाइम सुना भी होगा। ऑस्ट्रेलिया को में ऐसा माना जाता था कि जितने भी व्हाइट पीपल है, दे यूज्ड टू हैव अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी जस्ट लाइक गुंडाज, यू नो, थोड़े गुंडे टाइप के लोग हैं। क्राइम बहुत ज्यादा होते थे, मर्डर्स बहुत ज्यादा थे, चोरी बहुत ज्यादा होती थी, क्लियर, थीफ बहुत ज्यादा थे वहां पे। थीफ पीपल यूज टू हैव, और कोई भी दूसरी कंट्री के जब लोग आते थे वहां पे, तो दे यूज टू टीज देम, उनको मारते थे, उनको पीटते थे, जो रहने आता था उनके ऊपर थोड़ा अपना हक जमाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग क्रिमिनल्स ही पैदा हुए थे, भेजे ही क्रिमिनल्स जाते थे, चाहे वो यूरोप से आए, चाहे वो इंग्लैंड से आए, चाहे वो कहीं से आए, उनको भेजा ही जाता था। और जो यहाँ के एबोरिजिनल लोग थे, जो यहाँ के एग्जैक्टली ओरिजिनल लोग थे, वो लोग यहाँ पे क्या करने लगे, वो यहाँ पे चुपचाप रहने लगे। और थोड़े थोड़े जैसे बुश राइटर्स भी हैं इसमें, आपके बुश राइटर्स देखोगे तो बुश क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ नेक्सलाइट्स होते हैं ना, जो लोग जंगलों में रहते हैं, सिमिलरली बुश राइटर्स होते हैं, जो यहाँ के भी कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर काइंड ऑफ लोग थे, जो यहाँ पे रहते थे एबोरिजिनल, और वो हमारे जैसे ब्राउन कलर के लोग थे। उन्होंने लिटरेचर कैसे सीखा? उन्होंने थोड़े बहुत यूरोपियन जब आए, उन्होंने, जैसे मैंने आप लोगों को बताता हूं कि जैसे रूल ओवर करा ब्रिटेन ने, तो वो क्या करने लगा, ही स्टार्टेड मेकिंग क्रिश्चियन मिशनरीज, कि लोग क्रिश्चियनिटी को सीखें, हमारी तरह कन्वर्ट हो जाएं, एंड अवर हमारी लैंग्वेज बोले, यही उनका मेन मोटिव था। बट व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन, उन्होंने क्या करा कि लोगों को यहाँ पे, जिनको क्रिमिनल्स को भेजते रहे, वो तो बेसिकली थे इंग्लैंड से या यूरोप से, बट जो यहाँ के एबोरिजिनल लोग थे, उनको भी कन्वर्ट करने लग गए। और जिसमें क्या हुआ कि जो बुश पीपल बोला जाता है, जिनको हम बुश बुश BUSH बुश पीपल बोलते हैं, वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड लर्निंग देयर लैंग्वेज, कि उनकी लैंग्वेज को लर्न करने लगे, और धीरे धीरे वो फिर उसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने लगे। वहां के, अदरवाइज वहां के एबोरिजिनल लोगों को कोई लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं आता था। दे यूज्ड टू, वहां पे बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी भी चीज से एडजस्ट करके वो लोग बोल लेते, अदरवाइज उनकी कोई लैंग्वेज नहीं थी, क्लियर। ये तो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, जिन्होंने वहां जाके लिटरेचर स्टार्ट किया, उनको राइटिंग सिखाई या उन्होंने सीखी, और फिर उसके बाद वो लोग लिख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बेसिकली दो तीन टाइप के लोग आते हैं, एक एबोरिजिनल लोग, तो एबोरिजिनल राइटर्स, एक व्हाइट राइटर्स, कि जो व्हाइट राइटर्स, अब ऐसे भी तो व्हाइट राइटर्स होंगे ना, जो यहाँ पे आए, रहने लगे, जिन्होंने क्राइम्स कमिट करे, बट वो धीरे टाइम टू टाइम दे बिकम लाइक, उनकी इंप्रूवमेंट आने लगी उनकी, और वो एक नॉर्मल इंसान बनने लगे, क्रिमिनल की बजाय एक नॉर्मल पर्सनालिटी और लाइफ जीने लगे। फिर उन्होंने भी लोगों के यहाँ के हक में लिखा। ओके, जितने भी बाहर से लोग आए थोड़े टाइम बाद रहने के बाद, उन्होंने भी क्या करा, दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द पीपल, और लोगों के जो, जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके स्लेव बना लिए थे लोग, स्लेवरी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उनके साथ, उनके लिए भी ये हेल्प करते थे थ्रू देयर राइटिंग, ठीक है। और फिर मैंने बताया आपको बुश पीपल, तो बुश पीपल में भी, मतलब बुश जो लिटरेचर है वो ऐसा लिटरेचर है, पीपल यूज टू हाइड देमसेल्व्स इनटू द बुशेस,
और वहां पे रहते रहते वो लोग अपने लिटरेचर लिखते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहां रहते रहते लोगों से बचते घूमते थे, और ऐसे क्रिमिनल्स थे जो लोग ऑस्ट्रेलिया की जेल से भाग तो गए थे बट जाके बुशेस में छुप गए थे। क्लियर? तो ऐसे लोगों की हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। यहां तक सभी को क्लियर अब तक जो मैंने बताया? Yes. एनीवन एल्स? एनी कंफ्यूजन? पीयूष, मेनका, ब्रज किशोर, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? ओके, देखो पूछ लेना अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उस चीज को मैं बार बार समझा सकता हूँ। चलो, नाउ द थर्ड पार्ट। The third part is basically African literature. African literature को समझ के क्या समझ आता है? अच्छा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली बात, अलग अलग टाइप है। जैसे मैंने बताया था, हमारे कैनेडिया पे रूल ओवर किया, कनाडा पे रूल ओवर किया, ऑस्ट्रेलिया पे रूल ओवर किया, देन अफ्रीका एक कंट्री है जिस पे रूल ओवर किया, और यहाँ पे तो ऐसा रूल ओवर किया कि दे यूज्ड टू मेक द पीपल एज स्लेव्स, और उनको यहाँ तक कि उनको बेचने भी लग गए थे। दे यूज्ड टू हैव ट्रेड। ओके, ट्रेड करने लगे थे यहाँ पे लोगों को स्लेव बना के। क्यों? यहाँ पे जो कलर था बॉडी का वो बहुत ज्यादा डार्क था। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2-3 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट टर्म आती है जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपार्थाइड। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड लिटरेचर? कोई बता सकता है? ये टर्म पहले सुनिए, अपार्थाइड लिटरेचर। Terms of revolting against the colonialism. ओके, Like let me give an example. देखो बेसिकली अपार्थाइड का मतलब होता है दैट इज रेशियल सेग्रीगेशन करना। Inside and outside. या Sorry. बेसिकली अपार्थाइड लिटरेचर का मीनिंग होता है रेशियल सेग्रीगेशन करना। ठीक है? और कैसा रेशियल सेग्रीगेशन? अब जैसे मान लो ब्रिटिशर्स आर देयर, ओके, दे स्टार्टेड मेकिंग कॉलोनीज, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ द पीपल, और यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ द हाई ऑर्डर रैंकिंग पीपल ऑफ ब्लैक पीपल आल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने ये अपार्थाइड क्रिएट किया। अपार्थाइड बेसिकली क्या होता है? जब कुछ लोग जो वहीं के जो थोड़े बड़े लोग हो जाते हैं, जैसे अफ्रीका में भी ऐसे कंट्री में बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होंगे, जैसे जो नेता वगैरह लोग होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे या कुछ होंगे, जिससे कोई किसी एरिया कंट्री का किंग होगा या फिर कोई एमएलए होगा, एमपी होगा, कुछ होगा। तो ब्रिटिशर ने जब कॉलोनीज बनाई ना, तो उन्हीं ब्लैक्स के साथ मिलके इन लोगों में रेशियल सेग्रीगेशन पैदा कर दिया था। क्या पैदा कर दिया था? कि लोगों को डिवाइड करने लगे थे, ब्लैक्स को अलग, दूसरे लोगों को अलग। तो रेस के बेसिस पे इन्हें सेग्रीगेट करने लग गए थे। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एज योर अपार्थाइड लिटरेचर। क्लियर? इसमें अपार्थाइड लिटरेचर आपका आता है। तो बेसिकली जो रेशियल सेग्रीगेशन करा कि ब्लैक्स को अलग कर दो, व्हाइट्स को अलग कर दो, नॉर्मल को अलग, तो ये रेशियल सेग्रीगेशन करना। क्यों रेशियल सेग्रीगेशन करने के बाद यहां तक कि आपके जितने भी ब्लैक्स थे उनके जो भी उनके लिए उनके रिसोर्सेज कट कर दिए गए थे, उनके राइट्स कट कर दिए गए थे, उनको कोई राइट टू वोट नहीं था, उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी। तो उनके राइट्स बेसिकली खत्म कर देना ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज योर अपार्थाइड लिटरेचर। देखो आज सिर्फ समझो चीजों को, आज मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, बस बातें बता रहा हूं। जिस दिन इनका जब लिटरेचर स्टार्ट होगा ना, तब मैं इनकी डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। आज सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूं तुम्हें वर्ड का। ठीक है? तो अपार्थाइड लिटरेचर कौन सा होता है? व्हेन racial segregation is going to be done by the people of their own native country with the help of Britishers is called as apartheid literature. Clear? तो उस चीज को हम अपार्थाइड, तो ऐसे लोग थे यहाँ पे जो अफ्रीका में रह के व्हाइट लोग, देर आर व्हाइट पीपल जो अफ्रीका में, जैसे जरूरी नहीं है ना कि जैसे इंडिया था, इंडिया पे भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए, रूल ओवर किया, कॉलोनीज बनाई, बट ऐसे कुछ ब्रिटिशर्स भी तो थे अच्छे इंसान जो थे, जिन्होंने यहाँ पे लोगों की मदद भी करी, जिन्होंने आज, और वो लोग आज भी यहाँ रहते हैं। क्लियर? उनकी जो फैमिलीज है, जो एंसेस्टर्स हैं, वो पुराने टाइम के थे और वो इंडिया में आने के बाद वो आज भी यही रह रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने, जो यहाँ पे आने के बाद बहुत टाइम उन्होंने कॉलोनीज बनाई, लोगों के साथ रहे, बट कभी उनपे अत्याचार नहीं किया। दे नेवर लाइक उनपे कभी उनके साथ ज्यादा अच्छे से नहीं रहे हो या उनके राइट्स को छीन लिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बोलते हैं एंटी अपार्थाइड राइटर्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? एंटी अपार्थाइड राइटर्स। तो वो उसमें वो राइटर्स आ जाते हैं जो इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे।
कि तुमने इनके राइट्स क्यों रोक रखे हैं, कि मतलब ब्लैक लोग ही ब्लैक लोगों के राइट्स काट रहे थे जस्ट बिकॉज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ऐसे इंसान, ऐसे व्हाइट राइटर्स या ऐसे एंटी अपार्थाइड राइटर्स जो लोग इस अपार्थाइड को रोकना चाहते थे, वो लिटरेचर हम अफ्रीकन में पढ़े। इसके अलावा एक लिटरेचर आ जाता है, दैट इज ब्लैक लिटरेचर। अच्छा, मैंने ब्लैक लिटरेचर की बात करी या ब्लैक राइटर्स की बात करी, तो एग्जैक्टली किस कंट्री की बात कर रहा हूँ? कोई बता सकता है? अफ्रीकन की तो मैं बात कर ही रहा हूँ ना। ओके, मासूमा आप बताइए। अरे बाबा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। आई एम टॉकिंग ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। आई एम आस्किंग इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट which part exactly called as the black literature, मतलब which country is called as black, or you can say that from which country you will find the black writers. कंट्री पूछ रहा हूं मैं गाइस, आई एम आस्किंग यू द कंट्री। नाइजीरिया, दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया ही वो टर्म है जिससे आप लोग अभी, आप कभी भी किसी ब्लैक को जब इंडिया में देखते हो तो उसको आप बोलते नहीं हो निगा, एक टर्म है ना निगा, वो कहां से टर्म आई है? दैट इज फ्रॉम नाइजीरिया। बेसिकली नाइजीरियन पीपल्स आर कॉल्ड एज निगर, द टर्म इज कॉल्ड एज निगर, और दैट इज कम फ्रॉम नाइजीरिया। व्हाई? बिकॉज जो ये हम नीगा नीगा करते रहते हैं ना, दिस नीगा इज बेसिकली अ डेरोगेटरी टर्म, इट्स अ डेरोगेटरी टर्म फॉर नाइजीरियन पीपल। क्लियर? तो ये जब हम निगा बोलते हैं जस्ट, तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु इज ब्लैक एंड फ्रॉम नाइजीरिया। तो इस वजह से, तो आप जब भी देखेंगे तो हम ऐसे कोई भी ब्लैक दिख जाता है, अगर ब्लैक पीपल दिख जाता है तो उसे हम बोलते हैं हे निगा। तो दैट इज क्लियरली, तो वो इस चीज से चिढ़ते भी है। व्हाई? जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोग हैं, उनको हम, जैसे सॉरी फॉर द टर्म, बट नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको हम किसी जैसे टर्म, जैसे अगर मान लो चाइनीज दिखते हैं वो, मतलब उनकी जो ब्रीड है वो बेसिकली थोड़ी चाइनीज जापानीज जैसी सी है, पर है तो वो इंडियन। नॉर्थ ईस्टर्न को हम चिंकी चिंकी कह के एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड टर्म, वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि द पीपल आर फ्रॉम इंडिया नॉट फ्रॉम द चाइनी, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड टर्म टू से, इट्स इलीगल। बट हम जब निगा को भी, व्हेन वी कॉल अ ब्लैक पीपल, अगर कोई इंडिया में रहता है तो उसको भी हम निगा बोल देते हैं, तो वो अगर सामने वाला इंसान ब्लैक आपसे चिढ़ जाता है या फिर ही विल लाइक ऑफेंडेड, तो आप उस क्यों क्यों ऑफेंड हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि we don't know from which part or from which country that black people or that person is belong to. अगर तो वो सिर्फ नाइजीरिया का है, then we can call him निगा। जरूरी तो नहीं वो नाइजीरियन ही हो। तो जो ऑफेंड हो जाता है वो इसलिए हो जाता है बिकॉज he is not from Nigeria, he is from the another country from South Africa. क्लियर? तो वो लोग यही कहते हैं कि भाई, अब जैसे हम हर किसी को निगा बोल देते हैं, एवरी ब्लैक पर्सन इज अ निगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। कोई अमेरिका का हो सकता है, कोई कहीं का हो सकता है, तो ओनली नाइजीरियन पीपल आर कॉल्ड एज निगा। क्लियर? तो ब्लैक लिटरेचर वो लिटरेचर है, थोड़ा ब्लैक का मतलब इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो कलर था या लोगों का जो ब्रीड थी बेसिकली बहुत डार्क थी, यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा काले लोग रहते हैं। क्लियर? तो उनने भी कुछ लिटरेचर लिखा है, किस बारे में लिखा है, क्या लिखा है, वो भी बताएंगे। इसके बाद इसके अंदर आ जाता है आपका स्लेव नरेशन। तो यहाँ पे स्लेवरी के बारे में बातें हैं कि स्लेव लोगों को बनाया गया, जिनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया, इंग्लैंड भेजा गया, तो वो भी तो बड़े हुए होंगे। या फिर जैसे मान लो, इफ आई हैव अ फैमिली, आई एम अ निगर फैमिली, और मैं को यहाँ से स्लेव बना के किसी ने मुझे इंग्लैंड भेज दिया, और जब मैं बड़ा हुआ, जैसे मैं छोटा था बहुत, किड्स आर आल्सो बीइंग सेंट, किड्स को भी भेज दिया जाता था, तो मुझे भी भेजा गया, मैं छोटा था काफी, मुझे भेजा गया, भेजने के बाद मैं बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद मैं मर गया, पर मेरे जो बच्चे थे वो भी थे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वर देयर। तो उन ग्रैंड चिल्ड्रन ने क्या करा, पूरी मेरी लाइफ की थ्योरी समझी और मेरे बारे में लिख दिया। तो बेसिकली उन्होंने स्लेवरी के बारे में लिखा कि मेरे दादा के साथ ऐसा हुआ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, वो स्लेव थे, ये थे, बट एग्जैक्ट सिचुएशन तो नहीं पता ना उन्हें कि उनके फादर्स ने, ग्रैंड फादर्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने क्या सहा। इसलिए जो लोग स्टार्टिंग में स्लेव बनते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद, उम्र के बाद, वो अगर कोई स्लेव अपने उस ड्यूटी से, अपने उस एरिया से भाग जाता है,
तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्लेव का, तो ऐसा नहीं होता कि स्लेव को पकड़ा, ट्रांसपोर्ट किया, लोगों के घर गया, वहां पे जाके जैसे ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कंट्रीज में उसको छोड़ दिया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ऐसा नहीं होता था पहले कि लेके चले गए और उसको वहां पे छोड़ दिया और देन इट्स लाइक कॉमन कि भाई अब तो ठीक है बस ये यही रहेगा। नो, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइक हाउ मेनी इयर्स ही विल गोइंग टू स्पेंड ओवर देयर इन द न्यू हाउस, क्यों कितने साल यहाँ रहेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होने के बाद वो वहां से जा भी सकता है फ्रीली। ओके, तो इस तरीके से चीजें वर्क करती थी उस टाइम। तो वो जब जैसे जिसका टाइम पीरियड पूरा हो गया स्लेवरी का, वो टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जब निकला तो कई ऐसे राइटर्स भी बने, कई ऐसे पीपल जो राइटर्स बने जिन्होंने अपनी स्लेव की बारे में किताबों में लिखा, या उनके बच्चों ने लिखा, या फिर उनके किसी ग्रैंड सन्स ने लिखा, डॉटर्स ने लिखा। तो दैट बेसिकली कम्स अंडर योर स्लेव नरेशन। क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज लाइक, देखो मेन कंट्रीज के बारे में बताया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, Africa, and now basically Caribbean islands were also there. ठीक है, in which there are around 10 to 15 islands are there. Okay, Saint Lucia, Martinique, Dominica. Okay, just like that there are Tobas, Tobago, there are Trinidad, there are many other islands are there. So there another part is Caribbean islands or countries. ठीक है, Caribbean island और मतलब country, कैरिबियन कंट्री, जिसके अंदर आपकी बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स आते हैं और उनका अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्ट लाइक इफ यू विल फाइंड आउट। ओके, तो सबका अपना अपना एक पार्ट है। तो कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं, काफी सारी अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और अपना सब कुछ है, जिस वजह से हम उनके अलग अलग राइटर्स को पढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब मुझे एक टर्म के बारे, एक चीज के बारे में और बताओ, कैरिबियन आइलैंड के बारे में। जब मैंने यहाँ बात करी कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय कैरिबियन आइलैंड और समथिंग, इट्स नॉट ठीक है। जब मैं कैरिबियन आइलैंड्स की बात करता हूँ तो मुझे एक चीज बताओ, क्रिकेट किस किस को पसंद है यहाँ पे? सबको ही पसंद होगा, इंडिया में क्रिकेट ही होता है जो बेसिकली हम सब देखते हैं। तो इन क्रिकेट देयर इज अ टीम कॉल्ड वेस्ट इंडीज, देयर इज अ टीम कॉल्ड वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में? पारस, पीयूष, मासूमा, सारिका, सारिका you there? सारिका you there? Okay, so वेस्ट इंडीज कोई बता सकता है कि कहाँ है वेस्ट इंडीज? Where is basically West Indies in the world map? Okay, anyone else? Okay, anyone else? मेनका नहीं बताएंगे। देखो लिसन, आपका ब्राजील जहाँ पे है, ठीक है, जहां से ब्राजील स्टार्ट होता है साउथ अमेरिका खत्म होता है, तो इट्स इन दिस पार्ट। यहाँ पे साउथ अमेरिका खत्म हुआ, यहाँ से ब्राजील स्टार्ट हुआ, तो इसके बीच में एक लाइन है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे ऐसे कई सारे आइलैंड्स दिखेंगे आपको। उन सारे आइलैंड्स को कंबाइन अगर कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड योर वेस्ट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज? Because the people who are living on these islands are basically brown in color, are basically look like Indian, basically have a Indian color. Clear? और वैसे भी जब भारत की खोज करने वास्को डी गामा नीचे आ रहे थे तो नीचे की बजाय लेफ्ट मुड़ गए थे रादर देन उन्हें राइट मुड़ना था। मतलब इंडिया में ढूंढने की बजाय वो लेफ्ट चले गए थे, और लेफ्ट जाने की वजह से उन्होंने जब पहली बार कैरिबियन आइलैंड्स को देखा तो उनके दिमाग में जो सोच थी हिंदुस्तान को लेकर, वो उन्हें लगा कि लेस आई फाउंड इंडिया, और ये लोग इंडिया ही है, क्योंकि वहां की जो ब्रीड थी, कलर था, रेस थी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडियंस जैसी थी। बट कुछ टाइम बाद जब एग्जैक्टली पूरी इंडिया की खोज हुई, तब पता चला कि वो वेस्ट का इंडिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज, क्योंकि बस है नहीं, बट इट्स लाइक मतलब वहां कोई हमारे जैसे संस्कृति, कल्चर, रिसोर्सेज थोड़ी ना है। पर जब फर्स्ट टाइम ढूंढा गया तो लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे इंडियंस दिखते हैं, जैसे उन्होंने सोचा था। क्योंकि सबको ये पता था कि इंडिया में सारे तरीके के रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा आर देयर, फौना आर देयर, कल्चर इज देयर, एवरीथिंग वाज देयर। बट उन्हें जब वेस्ट इंडीज ढूंढ लिया था, मींस उन्हें जब स्टार्टिंग में लगा कि इंडिया है, तो उन्हें जब पता चला, क्योंकि इंडिया वाज बेसिकली फेमस फॉर देयर मसालाज, ओके, इंडियन मसाला के लिए फेमस था, तो वो वहां पे इतनी ज्यादा चीजें मिली नहीं। देन ये पता चला कि नो, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज अ वेस्ट साइड कंट्री
and which is basically having the similar breed just like Indians. So वो वहां से शिफ्ट हुए, दूसरी साइड है जब जाके हमारा इंडिया मिला और दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया, और हम बोलते हैं इस चीज को, हम इंडिया हिंदुस्तान बोलते हैं। तो वेस्ट वाले लोगों को हम कैसे क्या बोलते हैं, दैट इज वेस्ट इंडीज, और इधर वाले के लोगों को बोलते हैं हम अपना बेसिकली इंडिया, दैट इज इंडिया। क्लियर? तो इसमें आपके छोटे 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 ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं जिसके अंदर लोगों ने लिखा है, जिसके अंदर लोगों ने बताया, और इस आइलैंड्स के अंदर जो मैक्सिमम लिखने वाले लोग हैं वो कैसे लोग हैं, बता सकता है कोई? गाइस, आइलैंड ऐसा कुछ नहीं होता कि जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं उनमें कोई ना कोई रेस पैदा हुई हो। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं, कहीं और से शिफ्ट हुए हैं। जैसे सबने वीएस नायपॉल सुने हैं, राइटर वीएस नायपॉल, आपने सुना होगा, एक इंडियन डायस्पोरिक राइटर है। व्हाई? बिकॉज वो कैरिबियन आइलैंड में रहते हैं और वो इंडिया से ही थे और इंडिया से भाग के चले गए थे और वो कैरिबियन आइलैंड टोबागो एंड त्रिनिदाद में जाके छुप गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स ने आके अब हमारे इंडिया पे रूल ओवर करा है तो कहीं ना कहीं यहाँ इतनी सिचुएशंस बिगड़ जाएगी कि उनको भी मार दिया जाएगा, और वो या मार दिया जाएगा या उनको भी बंदी बना के स्लेव बना के रखा जाएगा। दैट्स वाई वीएस नायपॉल अपनी पूरी फैमिली, तो जो जितनी भी रिच फैमिलीज थी इंडिया में जिन्हें डर लगने लगा था कि यहाँ पे रूल ओवर हो जाएगा, उसके बाद वो रह नहीं पाएंगे, उन्हें सुननी पड़ेगी, उन्होंने वहां से अपने इंडिया से कंट्री छोड़ दी थी और जाके कहीं कहीं बसने लगे थे। इसमें से वीएस नायपॉल एक राइटर है, जो एक डायस्पोरिक राइटर है, जो जाके कैरिबियन आइलैंड्स में छुपे थे, और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो कैरिबियन आइलैंड्स में जाके शिफ्ट हुए थे। ठीक है? इवन ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन भी हैं, नाइजीरियंस भी हैं जो अपनी जगह को छोड़े, जैसे स्लेव बना के रखते थे ब्रिटिशर्स, तो वहां से भाग गए, भागने के बाद कहां गए, सबसे पास क्या था, कैरिबियन आइलैंड्स, तो कैरिबियन आइलैंड्स चले गए, वहां जाके थोड़े टाइम बाद रुके, रहने लगे, बड़े हुए, बड़े होने के बाद राइटिंग सीखी, राइटिंग सीखने के बाद अपनी राइटिंग्स को लिखने लगे। बट इनका बेसिकली राइटिंग पर्सपेक्टिव क्या था ये बताओ। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय डायस्पोरिक राइटर्स, बताओ कितने बोलते हैं डायस्पोरिक राइटर्स, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? those writers who are Okay, but what was the content of their writing? then mainly their content is Yes, they use the characters. Basically, the name of the characters are Indian. Basically, the place of the story is Indian continent, is in the Indian like inside the Indian continent. So when you will find these kind of writers who are living in the another country from their aboriginal country and use the content of their writing as the missingness of their native country is called as डायस्पोरिक राइटर। बात समझ में आई कि जब लोग इंडिया छोड़ के, जैसे इंडिया से जो अपनी एबोरिजिनल कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है, वहां पे जाके वर्क्स लिखता है और वर्क्स लिखने के बाद उनको वहीं पब्लिश करवाता है, तो पब्लिश करवाने के बाद जब वो वर्क को पढ़ा जाता है और अगर उस वर्क के अंदर जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो उसकी सेटिंग है, मतलब जो प्लेस की सेटिंग है, कैरेक्टर्स हैं, उन सब वो सब अगर इंडियन ही हो, मतलब इंडियन इन द सेंस जिस ओरिजिनल कंट्री से वो था, जिस नेटिव कंट्री से वो है राइटर, अगर उस चीज की मिसिंगनेस दिख रही हो आपको, कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में वो लिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज डायस्पोरिक राइटर। तो वीएस नायपॉल इंडिया के थे, रहते त्रिनिदाद कैरिबियन आइलैंड्स में थे, पर जितने भी वर्क्स लिखते थे उनकी कहीं ना कहीं टॉपिक, टाइटल, कैरेक्टर्स, सेटिंग, समरी इंडियन होती थी और अपने लोगों के बारे में बात करते थे, अपनी जगह के बारे में। दीज काइंड ऑफ राइटर्स आर कॉल्ड एज डायस्पोरिक राइटर्स। क्लियर? तो इन चीजों के बारे में, तो कैरिबियन आइलैंड्स में काफी सारे ऐसे अलग अलग राइटर्स आपको मिलेंगे, जिसमें जैसे वीएस नायपॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच फैनन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलियो कार्पेंटियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखे। तो ये आपका आ जाता है एक कैरिबियन आइलैंड्स। इसके बाद आपके आ जाते हैं साउथ एशियन और उसके अलावा आ जाता है आपका इंडियन। ठीक है? साउथ एशियन कंट्रीज में कौन कौन इंक्लूड है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पर बांग्लादेश का इतना कोई लिटरेचर है नहीं। ठीक है? तो बेसिकली पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को इतना ज्यादा नहीं है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो जापान और चाइना। क्लियर? चाइनीज राइटर्स, जापानीज राइटर्स, श्रीलंकन राइटर्स, पाकिस्तानी राइटर्स, ये हम बेसिकली पढ़ेंगे साउथ एशियन। क्लियर? तो ये आपके अलग राइटर्स हो गए और इसके अलावा आपका एक मेन राइटिंग आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन राइटिंग, इंडियन राइटर्स और इंडियन राइटिंग और इंडियन लिटरेचर।
जहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें किस बेआक में लाइक पार्टीशन पे लिख रखा है और पुअर पोवर्टी पे लिख रखा है, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे लिख रखा है, कास्टिज्म पे लिख रखा है। दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन इंडियन राइटिंग। क्लियर? तो ये अभी पार्ट मैंने सिर्फ आपको कॉमनवेल्थ का बताया कि इसमें कुछ कॉमनवेल्थ का क्या पार्ट है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कैरिबियन आइलैंड्स, दीज आर दोज कंट्रीज ऑन विच Britishers somewhere somehow ruled over them, made their colonies, and started uh, making Christian missionaries also, so that they can build their own culture, language, and their own people over there. और लिटरेचर तो कर ही रहे थे। जैसे आप मैकॉले की बात करते हैं तो उन्होंने इंग्लिश किस तरह स्टार्ट की। अच्छा चलो एक और चीज बताओ, जैसे मैंने वर्ल्ड लेवल पे तो बताया कि वर्ल्ड लिटरेचर किसने दिया, टर्म किसने दी, गोथे ने दी, राइट। बट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि who gave the term or who related this term in Indian literature, कि सबसे पहले वर्ल्ड लिटरेचर की टर्म को इंडिया में किसने दिया था, तो कौन बताएगा, बताओ। दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने यहाँ पे वर्क्स को, जो कंपैरेटिव लिटरेचर की, आप जब पीएचडीज करोगे तो आजकल कितना कमाल का एक टॉपिक चल रहा है, सर वी आर कंपेयरिंग द लिटरेचर, सर कंपैरेटिव स्टडी करी है सर ये। तो ही इज द फर्स्ट वन हु टुक दिस टर्म एज द कंपैरेटिव लिटरेचर। जिस चीज की वजह से जो हम कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, जिस वजह से हम ये इंग्लैंड के लोगों की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो वर्ल्ड लिटरेचर की बात करते हैं, तो वो इसीलिए बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन के लिटरेचर को, बाहर के लोगों के लिटरेचर को, कैनेडियन लिटरेचर को, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को कंपेयर कर सके। ओके, सो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन में दी थी, और वैसे बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लिटरेचर को टर्म गोथे ने दिया था, जो एक जर्मन राइटर है। क्लियर? तो अभी आपको मैंने कनाडा समझाया, ऑस्ट्रेलिया समझाया, अफ्रीका समझाया, कैरिबियन आइलैंड समझाए और इंडियन समझाया। ठीक है, इंडियन राइटिंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग है, तो इसके बारे में भी और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर वर्ल्ड लिटरेचर इज दिस। अब मैंने आपको ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में बताया, बस किसके बारे में बताया, दैट इज थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज colonial literature, that is also called as commonwealth literature। क्लियर? यहां तक आज की क्लास में अभी तक कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ब्रिज किशोर जी, ब्रिज किशोर, यू देयर? कैसी रही क्लास? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताइए। ओके, मासूमा, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, मेनका, पारस, पीयूष। सो आज एक बेसिक हमने बात करी है यहाँ पे वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा कि अब इसमें दो पार्ट और आ जाते हैं। जैसे मैंने नॉन ब्रिटिश बताया था, तो नॉन ब्रिटिश में कौन आ जाते हैं आपके, अमेरिकन, एंड नॉन ब्रिटिश में कौन आ जाता है, नॉन ब्रिटिश राइटर। इसमें आपके आ जाते हैं दो कंट्रीज, दैट इज अमेरिकन एंड यूरोपियन। अब यूरोपियन में कौन कौन सी आ जाती है, दैट इज फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रशियन, ग्रीक, एंड इज दैट क्लियर? तो यूरोपियन में तो आगे आपकी फ्रेंच, अब जैसे अमेरिका था, यूरोपियन था, ये वो कंट्रीज है जिन पे ब्रिटिशर्स ने रूल ओवर कभी नहीं किया। अमेरिका पे किया था, फ्रेंच कॉलोनीज आई थी, ब्रिटेन कॉलोनीज आई थी, बट इन्होंने बहुत जल्दी फ्रीडम पा ली थी। दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस इन द 18th सेंचुरी। बट हम कॉमनवेल्थ में उन्हीं कंट्रीज को बोलेंगे जिन्होंने 20th सेंचुरी में फ्रीडम ली है। क्लियर? बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज है जिनको फ्रीडम 20th सेंचुरी में मिली है। 18th सेंचुरी में अमेरिका ने ले ली थी, यूरोपियन कंट्रीज में तो कभी रूल ओवर हुआ ही नहीं। और यहाँ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच हो, इटालियन हो, जर्मन हो, रशियन हो, ग्रीक हो, रोमन हो, इन सबकी अपनी जो लैंग्वेज है ना, वो अपनी खुद की एबोरिजिनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि वहां पे इंग्लिश स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बाद में इनके वर्क्स को क्या किया गया, जिसको हम फोर्थ पार्ट ऑफ द लिटरेचर बोलते हैं, इनके वर्क्स को क्या किया, बताओ गाइस। एक ही चीज, यस, दैट इज ट्रांसलेट। जिस चीज को अब हम बोलते हैं दैट इज ट्रांसलेशन। ओके, लिटरेचर दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड, दैट इज कॉल्ड योर फोर्थ पार्ट ऑफ द लिटरेचर। ओके, तो ट्रांसलेशंस, इंग्लिश एंड ट्रांसलेशंस, जैसे फ्रेंच में कोई वर्क लिखा गया, उसको फिर ट्रांसलेट किया गया और फिर वो बुक पब्लिश हुई इंग्लिश में, तो दैट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश सीखी और अपने खुद के फ्रेंच वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसी पार्ट को हम करते हैं हमारे ब्रिटिश। जैसे मैंने आपको लिटरेचर के तीन पार्ट बताए थे। फर्स्ट इज ब्रिटिश, सेकंड इज नॉन ब्रिटिश, दैट इज अमेरिकन, यूरोपियन, थर्ड इज कॉमनवेल्थ और colonized कंट्रीज लिटरेचर, और यू कैन से दैट योर थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, एंड द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज
ट्रांसलेशन वर्क्स, कि जो ट्रांसलेट किए गए हैं, ट्रांसलेटेड वर्क्स और राइटर्स, ट्रांसलेशन राइटर्स और ट्रांसलेटेड वर्क्स, जिन्हें ट्रांसलेट किया गया है, चाहे वो चाइनीज लैंग्वेज में थे, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज में थे, चाहे वो रशियन लैंग्वेज में थे, किसी भी लैंग्वेज में थे, उनको ट्रांसलेट किया गया और फिर पब्लिश किया गया, देन दे विल बी इन द मार्केट। दोज आर कॉल्ड एज योर फोर्थ पार्ट ऑफ इट। तो बेसिकली आपके वर्ल्ड लिटरेचर में यही है। हर कंट्री के बेसिकली, जैसे अमेरिका थोड़ा आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, जिसमें अराउंड देयर आर 35 to 40 राइटर्स। इंडियन ऐसा है जिसमें 40 to 50 राइटर्स। कैनेडियन ऐसा है जिसके अंदर अराउंड 20 राइटर्स। तो कुल मिला के around 600 to 700 writers we are going to do in this world literature part, ठीक है, जिसमें जैसे बहुत सारे, जैसे अब मतलब आपका फ्रेंच भी आ जाएगा, अराउंड 30 राइटर्स आर देयर इन फ्रेंच। रशियन में अलग है, उसमें अलग है, नॉट 600 बट अराउंड 400 to 500 राइटर्स आर देयर। इज दैट क्लियर? तो आपको उनको नहीं, एशिया का पार्ट तो हुआ, बट यूरोपियन में क्या हो गया ना कि जब इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट, जब यूरोपियन लिटरेचर में क्या है ना कि ये रशिया, मतलब कहने की बात ये है कि रशिया को आप अलग से भी लिख सकते हो, बट कहने की बात है कि रशिया में जो बेसिकली लैंग्वेज थी वो आपकी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से जो थी वो रशियन ही थी। मतलब वहां कोई इंग्लिश वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, और वो वहां के लोग जो थे उन्होंने इंग्लिश डेवलप भी नहीं करी थी। जैसे हमारे इंडियन थे, रूल ओवर हुआ, इंग्लिश डेवलप होने लगी, और फिर आज की डेट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, राइट? बट रशिया में ऐसा नहीं है, दे यूज्ड टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। तो ये यूरोपियन के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि पहले ये पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, ठीक है? जो रशिया है आपका कॉन्टिनेंट, जैसे हम एशिया में बात बोलते हैं, रशिया आ जाता है पूरा। इन द सिमिलर वे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ, वैसे भी देखा जाए तो रशिया कितना बड़ा है, रशिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो यूरोपियंस के लगता ही है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे मैप में। तो दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस इन यूरोपियन कंट्रीज, ओके? क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उस राइट साइड में तो कोई लोग राइटिंग्स करते नहीं थे। जनरली जो लोग थे वो लेफ्ट अमेरिका वाले जो लोग थे, बेसिकली वेस्ट रशिया वाले जो लोग थे, वो ज्यादातर वहीं के लोग हैं जो बेसिकली लिखते हैं। जैसे मैक्सिमम कंट्रीज जितनी भी है आपके वहीं के लोग लिखते हैं, ठीक है? मैप मैप की चीज करेंगे ओके सर। तो रशिया की कंट्री जैसे जो है वो बस इंक्लूड करी जाती है, क्योंकि यहाँ के राइटर्स जो है वो थोड़ा यूरोप की साइड के ही हैं, बट नॉट फ्रॉम टू द चाइनीज साइड। और चाइना के भी ऊपर जो है ना वो सिर्फ राइट पार्ट ऑफ रशिया है, पूरा नहीं है, हाफ पार्ट भी नहीं है, बल्कि दैट इज ऑफ 30% ऑफ द एरिया, बाकी 70% तो यूरोपियन की तरफ ही है। ओके ओके, एनी अदर कंफ्यूजन? कोई ऐसी चीज है जो समझना है? सर एक वर्ल्ड लिटरेचर वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो मेरा है वो थोड़ा मतलब इस वे से नहीं है। ओके पाकिस्तान और इंडिया का जो कल्चर रिलेटेड था, कुछ जो भी लिटरेचर रिलेटेड रहा होगा, तो वो जितना सारा यहाँ पे जैसे टेजेस वगैरह मैम पढ़ाई थी इंडिपेंडेंस से पहले, वो सारा चीज पाकिस्तान का भी होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइटिंग एक्चुअली क्या है ना, इन द इंडियन वी यूज टू, बिकॉज द राइटिंग इन इंग्लिश इज, सॉरी, इंडियन राइटिंग इज बेसिकली related to your those writings which are before colonized time and after the colonized time, right? और पाकिस्तान जो एरिया है वहां के हम सिर्फ वो राइटर्स को करते हैं जो, और वैसे भी पाकिस्तान राइटर्स आपके कितने पूछे जाते हैं पेपर में? कोई एक क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान राइटर्स, जब आप लिटरेचर जब पढ़ते हैं, या आपने पढ़ा होगा पहले या कभी भी देखा होगा, या क्वेश्चन किसी ने अभी तक अगर यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा, तो पाकिस्तान लिटरेचर में से सिर्फ वही राइटर्स पूछे जाते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी से जैसे मान लो किसी ने शेक्सपियर से कुछ उठा रखा हो, कहीं से रेफरेंस ले रखा हो, कहीं से इंस्पिरेशन ले रखी हो ब्रिटिश से, किसी ने इंडियन राइटिंग से कोई इंस्पिरेशन ले रखी हो, तब आपका ये होता है कि लाइक यस दैट राइटर ऑफ द पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के, जो पुराने टाइम का, कॉलोनाइज टाइम का, ये वो इतना डिटेलिंग में नहीं, जो राइटर्स इंपॉर्टेंट है हम वही करते हैं, ठीक है? बट आपको इंडिया की, इंडियन लिटरेचर की सारी चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी आर गिविंग द एग्जाम इन इंडिया। तो इसलिए इंडिया के ऊपर बाय चांस क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। मैं इंडिया में कुछ नहीं कर सकता कि कौन से राइटर का क्वेश्चन आएगा, नहीं। बट हाँ, पाकिस्तान राइटर में मैं कह सकता हूँ कि द राइटर्स बेसिकली हम जो थोड़े फेमस होंगे उन्हीं पे आएगा, ज्यादा किसी का कल्चर या ये सब हमें नहीं जानना, ठीक है? यही पूछना चाह रहे थे या कोई और क्वेश्चन था? यही चीज थी? ओके ओके, मुझे लगा कभी मैं मिसअंडरस्टैंड ना कर गया और कुछ और बता दिया हो, जस्ट लाइक दैट, दैट्स व्हाई। चलो कोई नहीं, आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, पेपर 1 की होगी, इंग्लिश की होगी, कौन सी होगी दैट आई विल अपडेट यू। बट
कैसी लगी क्लास एक बार बता दीजिए, प्लीज गिव मी सम फीडबैक सो दैट इट इज, मेरे को भी लगेगा ना कि लाइक मुझे नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और अच्छा पढ़ाना है। आइदर कमेंट कर दीजिए या फिर एनीथिंग यू कैन डू, ओके। और बाकी क्लासेस ऐसी, यस, सर यूजुअली अभी एक्चुअली न्यू अपडेट्स आए नहीं है, ऑफिशियली नहीं आए हैं, बट जैसे मैं आपको बता सकता हूँ वी आर इन द कांटेक्ट विद टीचर्स और द प्रोफेसर्स, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे बताया था आपको कि जानते हैं, तो मेरी इतनी अपडेट मैम से अभी बात हुई नहीं है इस बारे में। बाकी मैम जिस दिन भी अपडेट होगा तो वो ऑफिशियली भी आएगा, और जब तक अगर ऑफिशियली नहीं आया तो कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्लियर? हाँ, ऐसा कुछ, वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, ये जो सिलेबस चेंज होएगा, ये जो बातें है ना, ये सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है। लाइक आई नो दैट एवरीबडी वांट्स कि कुछ सिलेबस कंप्राइज सा हो जाए, कुछ हमें ऐसा लगने लग जाए कि लाइक यस, कि हमें नॉवेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक नॉवेल्स बता दिए गए कि आप ये 500 नॉवेल्स पढ़ लो, आप ये 100 ड्रामास कर लो, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। वी ऑल वांट दिस, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज साफ साफ बताता हूं, हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं ना, दिस लिटरेचर सब्जेक्ट, आप जितना आपको यहाँ करवाया जाएगा और जितना आप खुद से पढ़ेंगे 1 साल में 2 साल में, मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। आज की डेट में फिर भी आपको लगता होगा कि लाइक यस, दिस आर्ग्यूमेंट इज गोइंग, और इसमें मैं थोड़ा ठीक नहीं पार्ट प्ले कर रहा, मेरे को आता है, पता नहीं है, समझ नहीं है। बट आफ्टर रीडिंग द होल लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, योर पर्सनैलिटी डेफिनेटली इंप्रूव अकॉर्डिंग टू यू, ओके। मतलब आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, प्लस साथ के साथ आपको हर आर्ग्यूमेंट में एक टॉपिक मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं लिटरेचर में पढ़ा हुआ होगा, जिस वजह से आप इस लाइफ के हर आर्ग्यूमेंट में बैठ पाओगे। आपके पास टॉपिक्स होंगे, बातें होंगी, तो आप वो सब कर सकोगे यहाँ, क्लियर? दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से कि यस, इंग्लिश लिटरेचर में कभी मत सोचो कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना सिलेबस है, क्या है। नो, नेवर। मैं हर बच्चे को ये कहता हूं कि जब तक आपने बाय हार्ट लिटरेचर को लर्न नहीं किया ना, मतलब आपने इसके कंसेप्ट नहीं समझे, इसके अंदर अगर, जैसे मैंने आपको बताया, हैंडमेड टेल्स एक स्टोरी है, एक नॉवल है जिसके अंदर ऐसी विमेन्स के बारे में बता रखा है जो बेबीज प्रोड्यूस करती थी, तो उनके बारे में जानना, प्लस स्लेवरी के टॉपिक्स कौन कौन से थे। इंडियन में अगर टॉपिक है तो आपने पढ़ा होगा कि देयर आर मेनी नॉवेल्स रिलेटेड टू योर पॉवर्टी, there are many novels which is related to your casteism, there are many novels which are related to your partition of the Indian Pakistan, partition novels जिनको बोलते हैं। तो इनको जब तक आप बाय हार्ट इनकी समरीज नहीं पढ़ोगे ना, इनकी समरीज को समझ के इनके मीनिंग्स नहीं निकालोगे, मीनिंग्स निकाल के यूं नहीं देखोगे कि किसने इनको क्रिटिसाइज भी किया, क्या हुआ, व्हाई दिस पर्टिकुलर नॉवल गॉट द अवार्ड, इसी वर्क को अवार्ड क्यों मिला, जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं। एक इंसान की रटने की, क्रैम करने की आदत कुछ 70-80% ही होती है या 60% होती है, 100% क्रैम कोई नहीं कर पाता, ठीक है। देखो, सबसे पहले लाइफ में अपने खुद के हाथ के चीजों, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स आपको इंस्टीट्यूट से मिले हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं, उसको भी पढ़ लोगे तो आपका नेट, जेआरएफ सब हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, उस नोट्स की आपने कदर कितनी करी, उस नोट्स को आपने कितना लिखा, उस नोट्स के ऊपर कितना लिखा, उसको गंदा कितना किया, उसके अंदर ऐड नॉलेज कितनी करी, वो डिपेंड करता है सारा। अब कोई नई बात पता लगी तो उसको ऐड करो। जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबने एक बहुत हंसी पात्र की मजाक बताता हूं, वैसे तो मैम पढ़ाएंगी। जैसे आपने एक मीम कल्चर आजकल आपका इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मीम मीम चारों तरफ मीम्स चलती हैं, रील्स चलती है, सब कुछ देखते हैं। बट आपने सुना होगा ऐसी बहुत सारी रील्स हैं जिनका कोई मीनिंग जो होता है, जब कि वो कहीं ना कहीं लिटरेचर से ही जुड़ा होता है। जैसे चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत पहले एक मीम आई थी जिसमें एक लड़की थी, शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वो एक गाड़ी के पीछे खड़ी हुई थी, और वो गाड़ी के पीछे खड़े होके सिर्फ ये कर रही थी, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, राइट? पार्टी, समथिंग पार्टी करके वर्ड आया था, राइट? याद है किसी को? तो जब वो पार्टी कर रही है तो क्या वो पार्टी बोल रही थी या क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी पावरी, इट्स PAWRI। वो पार्टी नहीं बोल रही थी, उसने वर्ड को थोड़ा यूं लगा लो, थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट में बोला या किसी चीज में बोला, उसने उस पार्टी वर्ड को पावरी बोल दिया, इट्स पावरी हो रही है। अब ये पावरी हो रही है, दुनिया को तो बहुत मजा आ गया कि लाइक ये लड़के देखो किस तरह से बोल रही है, इट्स
पारी हो रही है, नॉट पार्टी हो रही है, इट्स पारी हो रही है। बट ये पावरी जो वर्ड हुआ, दैट इज अ व्हाट, इसने उस सही वर्ड को जानबूझकर गलत वर्डिंग्स में बोल रखा है। क्लियर? जब हम किसी वर्ड को जानबूझकर गलत वर्ड बोलते हैं, जैसे मेरा नाम मोहित है, और अगर कोई आए और आने के बाद मुझे बोलते हैं और रोहित क्या हाल चाल है भाई, तो दिस इज व्हाट, रोहित बोल दिया ना मोहित की बजाय, और उसने जानबूझ के बोला है। इस टर्म को, अगर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मालाप्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? मालाप्रोपिज्म। ब्रिटिश में आएगा आपके, एक राइटर, एक ड्रामा या नॉवल करोगे आप जिसके अंदर ये मालाप्रोपिज्म वर्ड आता है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो मीन भी कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है ना आपकी टर्म से, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब चीजें आप करो तो ये आपको प्योरली सॉर्टेड मिलेगी। जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट अ सेकंड, माय लैपटॉप इज गोइंग टू डाई, जस्ट या हेलो। ओके, सो आपको समझ आया? ये मालाप्रोपिज्म इस टर्म को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मालाप्रोपिज्म। क्लियर? तो उसी टर्म से कहीं ना कहीं ये हम रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा इसने इस लड़की ने ऐसा बोला तो ये इस टर्म को ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मालाप्रोपिज्म एक टर्म है जो एक किसी नॉवल में थी, और उस नॉवल के अंदर मालाप्रोप एक वो थी कैरेक्टर, ठीक है, और वो हमेशा क्या करती थी, किसी को बुलाती थी या कुछ भी बोलती थी तो हमेशा स्पेलिंग्स मिस्टेक करती थी। जैसे यहाँ PARTY है, वहां पे PAWRI है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, वर्ड को चेंज करके बोलना, दिस इज कॉल्ड फ्रॉम द मालाप्रोपिज्म टर्म। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपकी ब्रिटिश में है, वर्ल्ड में है, जो बीच बीच में आएंगी। जैसे कैनेडियन में मैंने आपको बताया गैरिसन्स मेंटालिटी एक टर्म है जो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा ये किसने दी, क्यों दी, क्या मीनिंग था इसका, अमेरिका में ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में तो बल्कि आपकी 5 एजेस हैं अलग अलग, कि अमेरिका फर्स्ट एक्सप्लोर कैसे हुआ, ट्रांजिशन कैसे हुई, डिसइल्यूजमेंट कहां से है, ट्रांसीडेंटल एज क्या होती है, डिप्रेशन एज क्या होती है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया कि यहाँ के एबोरिजिनल लोगों को कैसे उन्होंने अपने अंदर कन्वर्ट किया और उनसे फिर उनसे वो लोग लिखने लगे। बुश पीपल कौन होते हैं, अफ्रीका में बताया ब्लैक पीपल कौन है, अपार्थाइड पीपल कौन है, स्लेव राइटिंग्स क्या होती है। क्लियर? इंडिया में जैसे टॉपिक्स है, कास्टिज्म है, पॉवर्टी है, तो ये सब कंबाइन करके चीजें लिखी जाएंगी एंड सॉरी कंबाइन करके करेंगे। और पूरा लिटरेचर कैसे होगा, हम राइटर करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, हम वर्क्स करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, हम समरी को पढ़ेंगे। आई विल गिव अ डेफिनेट बैकग्राउंड चेक ऑफ एवरी स्टोरी। मैं आपको बहुत सारी स्टोरी जो इंपॉर्टेंट होगी उसके कहीं ना कहीं एक हल्का सा बैकग्राउंड बताऊंगा, बट स्टोरी आप लोगों को पढ़नी है। मैं किसी से भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ स्टोरी में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने स्टोरीज छोड़ी है तो दिक्कत होगी आपको ही, क्योंकि देखो एक स्पेसिफिकली किसी वर्क के बारे में पूछना, पेपर के बारे में पूछना, वो वहां पे आएगा। हाँ, आपने कोई स्टोरी पढ़ी, उसमें कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे वो एक दिन पहले बताएंगे और नेक्स्ट डे फिर मैं आपको क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मैंने भी सारी स्टोरीज पढ़ रखी होगी अपनी लाइफ में। ओके, हर नॉवल तो मैंने भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पहले चीजें बताएंगे, फिर नेक्स्ट दिन हम उस चीज को पूरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी सारे वर्क्स की एक बैकग्राउंड डिटेल, एक बैकग्राउंड स्टोरी मैं सबकी बताऊंगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके पारस। यस, विपुल अग्रवाल, आप कुछ कह रहे हैं? एक्चुअली मैं आज ओके ओके ओके, यस मैम। हो गई एक्चुअली में मैं टीम पे बताया था मैम ने, बट मेरे पास ना लिंक तो 618 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, एक्चुअली वो लिंक 618 तक ही हुआ था। इज द क्लास अभी जस्ट ज्वाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, आज की तो अच्छा, तो मैंने सर उसके बाद मिस कर ओके ओके नहीं देखा। उसके बाद तो सर मैं फिर एक कल किस टाइम में नहीं, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका लिंक शेयर होगा मैम, ठीक है। ये रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्ड हुई है और इसका लिंक शेयर हो जाएगा आपको, एंड देन इट विल बी लाइक आप जैसे ही ऐड होंगे तो ग्रुप में चाहे डेमो ग्रुप में चाहे किसी में लिंक शेयर हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके ओके, नहीं नो प्रॉब्लम, आज तो आप थोड़ा लेट हो गए बिकॉज इट्स ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट क्लास कल भी, हाँ क्लास रिकॉर्ड भी होगी, इवन कल भी क्लास होगी मेरी, तो कल भी जब क्लास होगी तो आप कल भी ज्वाइन करेंगे। आज ऐसा कुछ बताया नहीं, आज सिर्फ मैंने एक बैकग्राउंड बताया सारे वर्ल्ड लिटरेचर का। ओके ओके, हाँ मतलब देखो अपडेट हो जाता है टाइम, अब मतलब रहेगी इवनिंग में, चाहे वो 6 o'clock, अगर कल बाय चांस पेपर 1 रहा तो मेरी थोड़ी लेट और हो सकती है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा दिन में। Okay guys, so thank you so much for joining the class and we'll meet you next time. Take care. Okay, bye bye.